I don't know, ma'am. Okay. Okay. Then Poonam, you Nikhil should sir. tell. Shabash. Nikhil, you can. Yes, sir. मैम इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना इसको समझ पा रहा हूँ, मैंने जितना देखा था, थोड़ा बहुत ही रिकॉल हो रहा है। जैसे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करें, उनके अंदर टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच बॉन्ड ऐसा क्रिएट हो कि वो एक दूसरे में डाइवर्सिटी ना समझे, एक दूसरे के रिगार्डिंग उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ एक्टिविटीज कर सके, उनके साथ घुल मिल सके, इंक्लूसिव रह सके। और जितना मुझे अभी तक मैम इसके नॉलेज है, यही है। Yes, Poonam. Sir, You want actually, to? हाँ yes, जी, बताइए बताइए. yes, sir. Actually, I asked you because this topic is relevant according to your subject. यस। National Trust Act is the law passed by Indian Parliament on 30 December 1999. Actually, sir always guide us to share the prior information about the topics, but sir, sorry, today I was not able to No inform problem, you, but I madam. would like to Continue. share this topic. ठीक। National Trust Act passed by Parliament on 30 December 1999. It is the law which preserves the rights and improve the lives of disabled persons with disabilities. It includes mainly four disabilities. First one is autism, second one is cerebral palsy, and third one is intellectual disability, and fourth one is multiple disabilities. This is the law especially for disabled persons. And I would like to share some more laws. 1995 PWD Act. PWD Act comes with 7 disabilities to secure rights and give them equal opportunities to disabled person. Next one is the Trust Act, National Trust Act 1999, and next one in 2016 RPDW Act, which is replaced version of PWD Act. It comes with 21 disabilities to secure laws and orders. I would like to set some more examples. Like whenever we go to examination hall, we can see some disabled persons. Because Indian government give them equal opportunities, equal time, and one helping hand to do the examination. Thank you so much, sir. Wonderful. और मैम Now, आरपीडब्ल्यू एक्ट था जो 2016 वाला, इसमें मैम जो जी, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन एंड हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन जैसे प्रोविजन भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अकोमोडेशंस, ये सब उसमें इंश्योर किए गए हैं ताकि उनको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने का मौका मिले। yes, sir. Sir, one more question I would like to ask. Actually, a person who is in my known, uh, in the vacancy of 2023, he went for principal post. In the interview, the same question asked, National Act of Trust. Yesterday, I came to know. थैंक यू मैम। एक है मेरा पूछो. यूडीएल के बारे में मैम आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा। Sir, can you speak again? Pardon, please. यूडीएल You, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। yes, sir. Okay, sir. UDL, Universal Design for Learning. According to me, uh, this is a universal design for learning we used for preparing lesson plans. Suppose that I have to teach in the inclusive classroom. In that time, I am completely responsible to prepare my lesson plan according to the student, because I have to follow the child-centered method. And in my class, I have different types of students who are facing different abilities, and I have to prepare my lesson plans, my TLMs, and my teaching aids according to them. By using different teaching aids, I need to teach them that is different designs plans for the students. Is it okay, sir? ओके मैम, ओके। You want to add something? नहीं मैं ओके बताया मैम, इसमें यही है मैडम, हम टीचिंग को ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है कि सिर्फ एक बच्चे फोकस ना हो, सभी बच्चों को हम एक साथ लेके चल सके। यही यूनिवर्सल Yes, डिजाइन sir. लर्निंग है। Yes, sir. भैया सब जने ना निखिल को बेस्ट विशेस दे दो. इनका ब्रह्मस्त्र डे और एनर्जी लेवल आज निखिल का आपको दिख ही रहा है. राइट. निखिल, आज आपकी एनर्जी लेवल बहुत शानदार है यार. थैंक यू वेरी सर। गुड, प्राउड ऑफ यू. कैसा लगा आपको पीटी क्लासेस पर हमारे साथ यहाँ पर? अच्छा लगा सर, Yeah, फॉर I कोविड। appreciate. Yes, sir. यस मैम, Nikhil, बोलिए sir, आप। I have videos. Nikhil, sir, I have seen your videos, your sign language. Really, I would like to appreciate. थैंक यू मैम। Well done, sir. थैंक यू मैम। Yes, sir. थैंक यू सो। Yes. और मैम जो
पीडी क्लासेस के बारे में सर, मेरे यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट मुझे भी अपनी दिखी, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, यहाँ की फूड अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है सबसे ज्यादा तो, मेरे से ज्यादा से यही मेहनत करते हैं मेरे लिए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बारे में। चलिए जी, आज Yes, इनको well बेस्ट done. विशेष दीजिए सब जने, पहले बोल दीजिए बेस्ट ऑफ लक मिस्टर निखिल। थैंक यू एवरीवन। हाँ बहुत All the जरूरी है। best. बेस्ट ऑफ हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आज निखिल को पार्टिसिपेशन, अब खुद ले रहा है चांस, मतलब मुझे जरूरत भी नहीं है निखिल को कहने का कि निखिल आप क्वेश्चन पुट अप करो। एंड रेखा वांट टू ऐड समथिंग? यस रेखा, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? शाबाश, बोलिए आप। यस सर। सर जो निखिल सर ने क्वेश्चन पूछा है यूडीएल के बारे में बताना चाहता हूँ। बताइए। सर यूडीएल का मतलब होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। और सर ये स्पेशल फ्रेमवर्क होता है जो स्पेशल चाइल्ड के लिए ही बनाया गया होता है। और सर इसमें क्या होता है कि मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट, कि बच्चों को इंगेज कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। और सर मल्टीपल मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जैसे बच्चे की नीड है हम अपने जो लेसन है उसको कैसे डिलीवर करना है, अपने लेक्चर को कैसे प्रेजेंट करना है, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, कोई पीपीटी बनानी है, मतलब बच्चे की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग। और सर इसका थर्ड जो इसका पॉइंट होता है वो होता है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि सर हमने तो बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बाद सर बच्चे को भी तो वो सब रिप्रेजेंट करना है। तो सर उसके बाद बच्चा का भी मतलब अपना अपना डिफरेंट मेथड होगा कि वो किस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू। वेरी गुड। रेखा, आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रतिभा मैडम। हेलो मैम। यस मैम। मैम आपका सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी मैम। मैम यदि कोई मैम अगर आपको प्रिंसिपल आपको आपने सब्जेक्ट से अलग कोई डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे देता है तो मैम आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? मैम आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बीच सपोज मैम में। सम अदर आपका सब्जेक्ट इज गिवन टू यू, ओके देन व्हाट मैम। विल यू डू अदर देन योर बायोलॉजी? कोई और सब्जेक्ट दे दिया जाए आपको पढ़ाने के लिए किसी क्लास में। सर I think it depends. Suppose if they are giving me primary classes or medium like up to 8 classes, then I think okay, it's okay. I can do justice to the students. But suppose they are giving physics or chemistry for higher standard like 10th or 12th, then I know my capabilities, my limitations. So I have to uh, refuse very politely to principal sir, sorry, I cannot do justice with the students. So in that case I will refuse, sir. Suppose you get up to 8th, then what will you teach? Primary, TCT, then what will you teach? Sir, then in case up to 5th class there is one subject that is EVS. Yes. So I will like to teach that subject. And up to in like 6th to 8th class there is a subject that is science, by the name of science. So I know I can teach children. वंडरफुल। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? शाबाश निखिल, आज पूरी एनर्जी के साथ बोल। चलिए। मैम जैसा आप बोल रहे हो, आप उसको रिफ्यूज करोगे अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत होगा, क्योंकि उससे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप जैसे फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए जा रहे हैं हम, तो हम उससे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन के बारे में पूछ लिया, और किसी के बारे में पूछ लिया, फ्रैक्शन, न्यूटन एप्पल गिरा था और हाँ वो सब। एप्पल, राइट राइट। ग्रेविटी, ये ग्रेविटी। सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे हम खुद भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज तो होगी, उससे हमारी इंप्रूवमेंट होगी स्टूडेंट्स के थ्रू। ओके, पूनम वांट टू ऐड समथिंग? लेकिन यस पूनम, मेरा व्हाट डू यू वांट टू सर ऐड? मेरा ये विचार है कि मैं यदि मैं इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू गो in the class with that particular subject, sir. I उसमें feel से in that manner. मैं चाहती हूँ कि मैं if I have a proper knowledge in that field, if I have Yes, at good your angle you are also command right. on the subject, You then don't only want I will. to. Yes, yes. At your हाँ, angle I also don't want to Pratibha is give right. them any misinformation or wrong information, sir. Yes, Poonam, what do you want to add in such thing, such situation? Yes, sir. Sir, I would like to share my own experience. Before beginning the session, when the exam in charges and timetable in charges prepare the timetable, in that time, we all teachers have to take one more subject, including my subject. I have to take one more subject as per my choice. And every year, my supplementary subject may be changed. Like this year, I take
MSc moral science, but next year I will change my subject. I have to change my subject. That is my compulsion. There is no other option to take another subject. Last year I take GK, this year MSc, and next one I plan to take maths for 1 to 8. Because we have done CTET, CGTET, I am belong to Chhattisgarh. In that time, we have learned all the subjects. And this is the time when we use and enhance our qualities. In that time, in that varieties of school, you have to compulsory take another subject, including your main subjects. Thank you. Yes, Amrita, you want to add something? You are raising your hand. Shabash. Yes, Amrita. मैम क्लास तो लेना तो पड़ता ही है, और ये कंपलसरी है, जो जो प्रिंसिपल दे वो उसको लेना पड़ेगा। और अगर शायद मुझे केमिस्ट्री का कुछ आता नहीं है तो मैं हम लोग तो सब सब्जेक्ट पढ़ के ही आए हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसके प्रीवियस क्लास हुआ है उसके एक्सरसाइज बच्चे को देकर क्लास करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल में। सर सर हम लोग को मना नहीं कर सकते, डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, बट ये कि अगर कोई फर्दर सब्जेक्ट देते हैं तो उसके पहले हम लोग को कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका हमको पूरा उसके बारे में हमको थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, और जितना हम लोग समझ सके उसको हम लोग डिलीवर करना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि हम लोग सर डिनाई नहीं कर सकते, कभी कभी क्लासरूम टीचर्स नहीं एबसेंट होते हैं तो हम लोग को क्लास लेना पड़ता है। तो यही है कि हमको अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम लोग को लेसन प्लान प्रिपेयर करना, हो सकता है किसी फर्दर टीचर की हेल्प लें जो उसमें एक्सपर्ट हो, तो उसके बाद से हमको क्लास लेना पड़ेगा। So, that is- Wonderful. Giving chance to Savita. Whom do you want to ask question? निखिल सर। Yes, Mr. Nikhil. हेलो सर। हाँ जी, हेलो मैम। सर आप HI बच्चों का असेसमेंट कैसे करेंगे? मैम HI बच्चों का असेसमेंट बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम उसको टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसके हियरिंग लेवल में इम्प्रूवमेंट हुए या नहीं, चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से सुन पा रहा है। जैसे किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है और हमने इसको हियरिंग एड प्रोवाइड की, बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर, कंप्लीट इन द कैनाल, ये सब हियरिंग एड्स होती हैं। अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद उसका हियरिंग लेवल कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इस तरह से हम उसको असेस कर सकते हैं। और उसकी लर्निंग कैसी, उसके बाद उसकी लर्निंग में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सब असेस कर सकते हैं। Okay. Giving chance to Mr. Nikhil. Whom do you want to ask? पूनम मैम से पूछना चाहूंगा। चलिए पूछिए। मैम कभी कभी हमें प्राइमरी लेवल को भी जैसे हैंडल करने को दे सकते हैं, तो हम वहां पर कैसे कर सकते हैं? जैसे उनको, उन स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा ही शैतान होते हैं। यस सर। सर प्राइमरी लेवल की क्लासेस हमको लेनी है। ओके सर। सर आई इफ आई गेट प्रॉक्सी एंड एक्स्ट्रा क्लासेस, सप्लीमेंट्री क्लासेस इन प्राइमरी सेक्शंस, sir, I do not waste that time. I would not like to waste the time of proxy period and supplementary classes. If I have 45 minutes, I go to the class, and according to my topic, is that they don't have different grammar. Maybe they have some different chapters on the literature, but the same grammar should be followed there. I would like to teach them parts of speech. I would like to make them group activity and give them opportunity to come in front and speak on different topics, like extempore can be conducted there. And student, I make them classroom very interactive without wasting a single minute, and grab the opportunity to conduct the class there. Thank you, sir. Wonderful. Now giving chance to our candidate. Yes. Nia. Poonam madam. Okay. मैम अगर कोई स्टूडेंट है वो लेसन और क्वेश्चन आंसर तो रीड कर लेते हैं, पर ग्रामर उनको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो पढ़ना पसंद नहीं करते, तो अब क्या करूँ? ओके मैम। कोई स्टूडेंट है जिनको ग्रामर पसंद नहीं है। ओके मैम, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे पसंद नापसंद की तो कोई बात नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो हमको नहीं पसंद होती है, बट वी हैव टू डू देम। बिगनिंग में वो थोड़ा सा बिटर लगता है, बिटर फील्स, बट वो बाद में बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत ज्यादा जरूरी भी लगता है लाइफ के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ग्रेजुअली बाय साइटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड लाइक, जैसे मैम अगर मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाना है, बिगनिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच,
तो जो बुकिश डेफिनेशंस है, जो बुक पे हमें देना है, जैसे कि शिवानी मैम हमेशा बोलती है टू कनेक्ट द चिल्ड्रन आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें जो बुक पे डेफिनेशन है उससे अलग कुछ डेफिनेशंस उनको देनी है। लाइक आई प्लान माई सेल्फ, मैं खुद के लिए प्लान कर रही हूँ कि मुझे पीएचडी करना है और अपनी खुद की एक ग्रामर बुक बनानी है जिसपे डेफिनेशंस कैसी होंगी, जो बिल्कुल अलग होंगी। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। कैसे होंगी? लाइक प्रेपोजिशंस, आई हैव प्रेपोजिशन, preposition वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छुपा है। preposition tells us the position or the location of any noun, like the book is on the table। कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करके, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करके कि preposition क्या है। मेरे पास वाटर बॉटल है, मुझे रजिस्टर है, मैं बच्चों को टेबल पर रखकर, अंडर द टेबल रखकर, ऑन द टेबल रखकर, इनसाइड द पेन, द बुक इज इनसाइड द पेन, ये सब करके मैं बच्चों को क्रिएटिव वे में लर्न करवा सकती हूँ। बिगनिंग में थोड़ा सा बिटर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड माय मेथड्स एंड वैल्यू द ग्रामर। थैंक यू मैम। Uno madam, whom do you want to ask एक्सक्यूज question? मी सर, सर सर मैंने आई, एक क्वेश्चन। Okay madam, please हेलो ask. सर। Yes Manjeet, ask यस please. सर। हेलो पून मैम। हेलो मैम। मैम ऐसे ना सीबीएसई ने अभी कहा हुआ है, हो गया 1 मंथ, जो 9th की इंग्लिश की बुक है उनमें शायद मे बी कोई बुक होगी, मुझे इतना तो मालूम नहीं है, 9th क्लास की है, उसमें 29 चैप्टर हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जो 29 चैप्टर हैं उनमें से 28 चैप्टर हैं जो ओल्ड, वो हम हटाएंगे और सिर्फ एक चैप्टर ही है जो ओल्ड रहेगा इंग्लिश का। और जो नए चैप्टर आएंगे वो जो हमारे राइटर होते हैं जो फॉरेन कंट्री के होते हैं उनको हटा देंगे और जो इंडियन है सिर्फ उनको ही लगाएंगे। तो हम तो इतनी देर से है जो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो इंग्लिश के साथ हो रहा है, और अगर उन्होंने हमारे ओल्ड सब्जेक्ट, ओल्ड जो है टॉपिक से हटा दिए और सिर्फ एक ही बचा हमारे पास, तो हम बच्चों को जो नए टॉपिक आ रहे हैं उनको हम कैसे क्लास में डिलीवर करेंगे मैम? मंजित मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बिकॉज ये टॉपिक मुझसे रिलेट करता है। लास्ट ईयर आई टॉट इन क्लास 9, इन द सेम ईयर आई टीच क्लास 9। मैडम लास्ट ईयर जो हमारे पास बुक थी वो फ्लाइट, अभी जो हमारे पास बुक है बुक का नेम है कावेरी, जिस बुक की आप बात कर रहे हैं। और हमारे पास अभी है 24 चैप्टर्स, वी हैव 12 प्रोज चैप्टर एंड 12 पोएम्स। और ये जो आपने बात बोली मैम कि हमारे जो ब्रिटिश एंड फॉरेन राइटर्स हैं उनको रिमूव करके हमें इंडियन ऑथर्स दिए गए हैं जिनको हम इजीली अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू साइट सम एग्जांपल। I don't have book right now, but I would like to cite some examples. Chapter first of 9th English NCERT, How I Taught My Grandmother to Read. The author is Sudha Murthy. As you know, Sudha Murthy, and we have lots many videos on YouTube also about Sudha Murthy. Sudha Murthy taught her grandmother how to read, and this is very beautiful chapter. We can connect this chapter to our real life. And what is the moral? That we should respect our grandparents and we should spend quality time with grandparents. Chapter 2, Bharat Our Land. Bharat Our Land connect to the patriotism and the writer Subramanya Bharati who belongs to South India. Chapter 3, Pot Maker. Tamsulao is belong to northeastern part and it teaches us the vocational education. These chapters are really fantastic. Thank you so much, ma'am. Yes Poonam madam, whom do you want to ask question? Choice is yours. Anybody? Yes. Sir, I would like to ask a question to Savita ma'am. Okay, have your question please. Yes, sir. Savita ma'am. हेलो मैम। Okay, ma'am. Ma'am, मेरा question ये है, why is the national flag? Because today I attend a meeting because we have today we have 15 July and only 1 month is left for the Independence Day. And I prepared the minutes of meeting for today. Ma'am, why is the national flag hoisted different way on the national festival? Like on 15 August, we host the national flag differently. On 26 January, Republic Day, we host the national flag in different way. What is the reason behind it? Because we are Okay. teachers. Yes, ma'am. मैम आपका क्वेश्चन है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नहीं नहीं मैम, मैम मैम एक और हमारे रिपीट। मैम हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, उसको हम 15 अगस्त को डिफरेंट वे में
होस्ट करते हैं, अनफ्लर करते हैं, और 26 जनवरी को डिफरेंट वे में होस्ट करते हैं, मतलब झंडा फहराते हैं और लहराते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? तो सॉरी मैम, आई हैव नो आइडिया। Ma'am, but it is really significant question for all of us because we are connected. Ma'am, actually, I am not fully aware about this, but I have a little clue. I have a little idea about this. I think it is related to that in 26th of Jan, our constitution came into force. So it is somewhat related to that event. And on 15th August, we got freedom. So I think the manner of hoisting is related to or signifies these events. I think so. Okay. Yes, Poonam. Yes, Pratibha. Sir, Be fast. sir, what time we have? 1.5 minutes. Okay, sir, may I start? Okay, respected teachers, I begin with tricolor. We have three colors. Saffron is symbol of sacrifice and courage. White is symbol of truth and peace. Third one is green, is color of prosperity and greenery. Ashok Chakra is known as the wheel of time, which symbols the continuity of 24 hours. And we hoist the flag differently on different national days. On 15 August, we got independence from the British Empire. In that time, the flag pulled up from bottom to upward the pole, and the we hoist the flag, actually that is called Lehrana. On 26 January we got our constitution, that is known as the we know the constitution about, and 26 January is known as the Republic Day because we got the constitution. In that day, the flag or the tricolor already tied up on the top of the pole, and we only unfurl the flag. This is the different because both different days has different values. Okay, thank you so much. Wonderful, students. It was a really nice session. And give blessings to my student, Mr. Nikhil. He has his Brahmastar day today. और सब जने बेस्ट विशेस दे दीजिए भाई, और proud of you, Mr. Nikhil. Okay, best of luck. All देखिए the best. blessings for Thank you, today. sir. Thank you, everyone. Okay, bye bye all of you. Have a beautiful smile on your faces. Come on. See you. We'll meet tomorrow.